हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो वीडियो है ये रिलेटिव मोशन वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रिलेटिव मोशन के बेसिक्स बताए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इन वन डायमेंशन। टू डायमेंशंस के लिए एक दूसरा वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, मे बी एक या दो, जिसमें कि डिफरेंट टू डायमेंशनल केसेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बट अभी के लिए हम सिर्फ वन डायमेंशन पे फोकस करते हैं। और इसमें किस तरह की हम प्रॉब्लम्स लेंगे, तो इसमें हम सारे मेजर पोर्शंस को कवर करेंगे जिस जिस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और इसमें हमारा जो स्ट्रेस रहेगा वो रहेगा जेई और एनसीईआरटी पर। तो we'll start with NCERT and then we will go to some difficult level problems. Although the NCERT problems जो मैं ले रहा हूँ they are also very important, they are not very easy. Generally लोग ये सोच लेते हैं NCERT means easy, but that's not the case. So if you are beginning to understand the topics, the NCERT problem is going to be very helpful in your understanding. Okay, so let's get started. So this is problem number 3.7 और प्रॉब्लम नंबर 3.7 में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, मैं इसका उल्टा काम करूंगा। मैं आपको पूरी प्रॉब्लम समझाऊंगा। स्टेटमेंट लिख लेना और सॉल्यूशन बता देने से काम होता नहीं है, इट इज अ वेरी बैड वे। सो फर्स्ट वी विल डू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, सो इन द प्रॉब्लम वी एक्चुअली हैव टू ट्रेन्स। And both of these trains are 400 meters long. 400 meters long. अब हर ट्रेन के बारे में आपको एक बात समझनी होगी कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो फ्रंट एंड पर होता है और जो ट्रेन का गार्ड होता है वो सबसे आखिरी डिब्बे पे बैक एंड पर होता है। ये दिमाग में क्लियर रखना कि ड्राइवर एंड द गार्ड, द ड्राइवर इज इन द इंजन, एकदम फ्रंट इंजन, एंड द guard is at the extreme rear end, that is on the last bogie of the train. So every train has got a driver and a guard, and these two, generally the placement of driver and guard is given as such. Okay, now both of these trains are moving with 72 km per hour, or we can simply say 20 meter per second. Now, according to the given problem in NCERT, this is train A and this is train B. Now the question states that the driver of B accelerates at 1 meter per second square and after 50 seconds the guard of B, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, the guard of B just brushes past the driver of A. अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि थोड़ी देर बाद, let's say after some time, after some time नहीं, इसी वक्त t equals to 0 से b एक्सेलरेट करना शुरू करता है। इस वक्त जो पहला डायग्राम है, इस वक्त b एक्सेलरेट करना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद b का जो गार्ड है वो a के ड्राइवर को जस्ट पास ऑफ करता है, लाइक दे आर सिंपली पासिंग ऑफ ईच अदर, जस्ट ब्रशेस पास्ट, and this is t equals to 50 seconds. And the question की statement मैं आपसे वो लिख देता हूं। The question is, what was the original distance between them? What was the original distance between them? Okay. So we have to solve this problem, and in order to solve this problem, what do? Both trains are moving
मैंने आपको ये बात बताई है, when two or more than two objects are moving, what you can do is you can simply take one object as the reference. So you can take A as the reference. यहाँ पे मैं बना देता हूँ. You will take A as reference. When you take A as reference, B will have a somewhat different motion. So let's see what is the motion of B. In order to understand the motion of B, we are simply going to use the formula for relative velocity. So velocity of B with respect to A equals to velocity of B minus velocity of A. And that is going to be 20 minus 20, and that is equals to 0 meter per second. You can also find out the relative acceleration. The relative acceleration is acceleration of B with respect to A equals to acceleration of B minus acceleration of A, and we know that only B is accelerating, A is not accelerating. तो उसका मतलब ये हुआ कि acceleration of B is 1 and acceleration of A is 0. So that would give us the relative acceleration as how much? As 1 meter per second square. Okay. Now we assume that the initial distance between A and B is x. That is what we assume. And after some time, actually 50 seconds to be exact, not some time, 50 seconds to be exact, B is found to be somewhere here. Now, how much distance does B cover? So B covers first the distance x, then a distance 400 to become parallel to A, and then another distance of 400 to go ahead of A. ये बात याद रखिएगा, B covers a distance of 400 to become parallel to A, and then another distance of 400 to get ahead of A. Got it? Now the entire displacement of B is x plus 800. The acceleration of B is 1 meter per second square, and the time taken is obviously 50 seconds. So all we are going to do is we are simply going to apply the equation of motion. S is equals to ut plus half at square. The relative distance is 800 plus x. U is equals to 0. A equals to 1 and T is 50 squared. Let me separate this, otherwise there will be some sort of confusion here and there. Now 50 squared is 2500. We all know that, and 2500 by 2 is 1250. So the value of x is going to be 1250 minus 800, and that will be equals to how much? 450 meters. लेकिन हम अब इस बात पे ध्यान देंगे कि हमसे पूछा क्या गया था. हमसे पूछा गया था what was the original distance between them, और यहीं पे एनसीईआरटी ने अपनी लैंग्वेज में आपको घुमा दिया. What was the original distance between them? The question is who is this them? ये them का मतलब क्या है? Does them represent the them trains or them represent something else? So them represents, बहुत ध्यान से देखिएगा, them represents the guard of B and the driver of A. Them does not represent the trains, them represents the guard of B and the driver of A. So the question is asking you that what was the distance between the guard of B and the driver of A. The guard of B at the rear end of train B and the driver of A at the far end of or the front end of train A. So if you want to find out this distance, it's actually easy. First you will find this distance, that is equals to 400. Then x का value आपको मिल गया 450, and then there is another 400. So the total distance, the total initial distance between, let me write this, the total initial distance between guard of B and driver of A is 400 plus x plus 400, and that will be equals to 1250 meters.
and that would be your answer. Okay, so this is the problem number 3.8 from NCERT. This is also based on relative motion and it's actually a good problem. So let's see. We have a car A. जैसा कि मैं हर बार करता हूं, हम पहले प्रॉब्लम समझेंगे rather than directly going to the solution. So we have a car A which is moving with 36 kmph or 10 meter per second on a two-lane highway. Okay, it's a two-lane highway. As you can see, the cars would be going on this side and there will be cars coming from this side. So it's a two-lane highway and car A is moving at 36 kmph or 10 meter per second on a two-lane highway. Now there are two more cars. So there is this car B and it is moving at 54 kmph or 15 meter per second, if I am right. I think so, yes. And there is another car C in the opposite lane moving with 54 kmph. And at the given instant, जिस instant पे question दिया जा रहा है, उस instant पे A और B के बीच की distance और A और C के बीच की distance दोनों ही 1 किलोमीटर है या फिर 1000 मीटर्स कर देते हैं. नाउ हियर इज द सिचुएशन. बी क्या करता है? बी ये सोचता है कि मैं जो है ना कि मैं पहले ए को ओवरटेक कर लेता हूं, सी के आने से पहले, सी के यहां पहुंचने से पहले मैं पहले ए को ओवरटेक कर लेता हूं इस तरह से. अब ये थोड़ा सा टेढ़ा पाथ फॉलो करेगा बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट थोड़ा सा टेढ़ा पाथ. वी विल कंसिडर दैट बी इज ऑलमोस्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट इज नॉट अ बिग डील. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए before C does. And what minimum acceleration of car B, what minimum acceleration of car B is required to avoid collision. इतना छोटा से छोटा एक्सेलरेशन कि कोलिजन जस्ट बच जाए. तो कोलिजन जस्ट बच जाए मतलब लेट्स ड्रॉ द फाइनल सिचुएशन. बहुत ज्यादा फेयर वर्क नहीं करूंगा बट in order to make you understand I'll have to do this. So the final situation would be that A is somewhere here, this is A, okay, and B has like just reached here, B has just reached here and C is here almost at the same time, so you know the collision has just been saved. अब ऐसा नहीं है कि A ट्रेवल नहीं किया है, A has also traveled. Let me shift this thing forward. Let me shift all these things forward just to show you that A has actually also traveled. Okay, so this is the situation. Now इस तरह के मोशन में तीन चीजें मूव कर रही हैं, लेकिन एक बात का ध्यान दो, जो भी ओवरटेक होगा वो ए के आसपास ही होगा. जो भी एक्सीडेंट होने या ना होने की पॉसिबिलिटी बन रही है वो ए के आसपास बन रही है. ए इज लाइक द पिवट ऑफ एवरीथिंग. बी को ए को ओवरटेक करना है, सी को भी ए को क्रॉस करना है. लाइक ए इज द पिवट ऑफ एवरीथिंग. सो व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? टेल मी. वी टेक ए एज रेफरेंस. दैट्स करेक्ट. वी टेक ए एज रेफरेंस. A as reference. When we take A as reference, the velocity of B with respect to A is equals to पहले मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला. velocity of B minus velocity of A, so that is equals to 15 minus 10 and that is equals to 5 meter per second. Velocity of C with respect to A is equals to velocity of C minus velocity of A. So velocity of C is actually in the opposite direction. So minus 15 minus 10 and that is equals to minus 25 meter per second.
Now in case you don't remember, 54 किलोमीटर पर आवर is actually 15 मीटर पर सेकेंड, ये बात का ध्यान रखिएगा. Okay. Also B is accelerating with an unknown value of acceleration. Now there is another important thing कि अगर आपने A को रेफरेंस मान लिया तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि A comes to rest. This is very important. अगर आपने A को रेफरेंस मान लिया तो A comes to rest. Then B has to cover 1000 kilometers and C has to cover 1000 kilometers. B has to cover 1000 kilometers and C has to cover 1000 kilometers. Both of them have to cover 1000 kilometers and both of them have to cover 1000 kilometers in the same time. That is very important. In the same time. Now, if you are going to look at the motion of B, now this is important. If you are going to look at the motion of B, the displacement of B is 1000 kilometers. Initial velocity of B is 5 into t, plus acceleration of B is unknown, so half a into t square. Now if you look at the motion of C, minus 1000 equals to minus 25t and t equals to 40 seconds. Now if you put on this 40 seconds in the first equation, you are going to get 1000 equals to 200 plus 1600 by 2, that is 800a, something like that. And then this becomes actually very easy. As you can see, it's just direct solution. A equals to 1 meter per second square. So this is the acceleration that is required by B so that it can just overtake A without actually colliding with C. Okay? Okay, so this is problem number 3.9 of NCERT chapter kinematics and basically motion in a straight line. And this problem is actually very interesting. ध्यान से देखो ये प्रॉब्लम कहती क्या है. मैं प्रॉब्लम की स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, मैं आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा कि क्या है. तो हमारे पास दो कस्बे हैं, टू टाउन्स. I don't know why I'm drawing towns like this, but okay, I do not have a better representation, so चलो ठीक है. I have two towns, okay, and in between these two towns there are a series of buses that move between the towns, going forward and then coming backward. So there are set of buses moving forward and there are set of buses moving backwards, or I should simply say that there are set of buses moving from town A to town B and then back to town A. Now what is the speciality of these buses? क्या क्या बता रहा है इन buses के बारे में? पहली चीज ये बता रहा है कि सारे buses की speed जो है वो same है. All buses have got same speed, किसी की different speed नहीं है. जो buses आगे जा रही वो भी और जो buses वापस आ रही हैं B से A आ रही वो भी, किन्हीं बस की स्पीड में कोई अंतर नहीं है. पहली चीज तो ये बता रहा है. Let me make this buses a bit smaller ताकि मुझे बीच में और भी कुछ बनाना पड़ सकता है. Alright. सारे buses की स्पीड सेम है. दूसरी चीज ये बता रहा है कि सारे बसेस के जो निकलने का टाइम इंटरवल है वो सेम है. जैसे आपने कोई बस स्टैंड पे चले जाओ तो आप ये कहो कि हर आधे घंटे पे बस निकल रही है. बिल्कुल वही हाल इसका भी है. तो मान लो कि ये आपकी P बस है, ये Q बस है और ये R बस है. तो P बस पहले निकली थी, उसके T टाइम बाद Q बस निकली, उसके T टाइम बाद R बस निकली. दूसरी चीज, रिटर्निंग बसेस का भी जो टाइम इंटरवल है वो सेम है. मतलब अगर मैं इसको मान लूं M, N और O, तो सबसे पहले M बस निकली थी, उसके T टाइम इंटरवल बाद N बस निकली और उसके T टाइम इंटरवल बाद O बस निकली. तो बसेस के निकलने का जो टाइम इंटरवल है वो सेम. अब एक साइक्लिस्ट है, यहां पे छोटा सा कहीं बनाता हूं. लेट मी ड्रॉ साइक्लिस्ट हियर. इट्स अ वेरी बैड साइक्लिस्ट, बट चलो ठीक है, यू गेट माई पॉइंट. सो दिस इज अ साइक्लिस्ट.
ड्राइंग एन एरो वुड बी बैड क्योंकि एरो मुझे दिखानी होगी टू शो द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट. सो जस्ट ये ध्यान रखो, दिस इज अ साइक्लिस्ट and this cyclist is moving from town A to B with a speed of 20 meter per second. And आपसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो आप ध्यान से सुनो. The bus is appearing, the bus is moving in the direction of cyclist the bus is moving in the direction of cyclist or crossing the cyclist in 18-minute intervals. And the bus is moving in opposite direction are crossing the cyclist in 6-minute intervals. Find the speed of buses and time interval t. तो ये क्या कह रहा है कि जो बसेस साइक्लिस्ट के पैरेलल मूव कर रही हैं वो 18-18 मिनट में उसे क्रॉस कर रही हैं. जैसे जब P क्रॉस की होगी उसके बाद 18 मिनट बाद Q क्रॉस करेगी. अब Q क्रॉस करेगी उसके 18 मिनट बाद R क्रॉस करेगी. अच्छा, दूसरा, जब M क्रॉस किया ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली बस, जब M क्रॉस किया उसके 6 मिनट बाद N क्रॉस करेगी और फिर N क्रॉस करने के 6 मिनट बाद O क्रॉस करेगी. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम जिसमें एक डायरेक्शन में जाने वाली बसेस 18-18 मिनट पे क्रॉस कर रही हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने वाली बसेस 6-6 मिनट पे क्रॉस कर रही हैं. तो चलिए समझते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ओके, चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो मान लेते हैं कि टाउन ए से टाउन बी जो फॉरवर्ड बसें जा रही हैं पहले उनको एनालाइज करते हैं. हर एक बस की स्पीड सेम है तो सारे बसेस की स्पीड VB होगी. मान लो B रिप्रेजेंट्स द बस. हर एक बस के बीच में टाइम इंटरवल सेम है T, तो हर एक बस के बीच में डिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी. VB into T, that will be the distance between the buses. Now I want you to understand कि साथ में साइक्लिस्ट भी मूव कर रहा है. And this is cyclist, whatever I know. चलो ठीक है. So this is your cyclist. Okay? साथ में साइक्लिस्ट भी मूव कर रहा है. साइक्लिस्ट मूव कर रहा है 20 kmph से. इतनी बात क्लियर है. अब हमें क्या करना है, हमें अपना मोशन साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में देखना है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में एक डेटा दिया हुआ है. क्या डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में? कि साइक्लिस्ट देखता है कि हर एक बस उसे 18-18 मिनट पे क्रॉस करके निकल रही है. पहली निकली, फिर उसके बाद ये निकली 18वें मिनट पे, फिर ये निकली 36वें मिनट पे, लाइक 0, 18, 36, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक. तो जब साइक्लिस्ट ये देखता है कि बस उसे 18-18 मिनट पे क्रॉस कर रही है तो एक काम करते हैं, हम सारा मोशन साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं. तो विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट क्या हो जाएगा आप खुद सोचो. अगर आप पहले तो विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट करोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट जैसे ही करोगे तो साइक्लिस्ट की स्पीड हो जाती है 0. साइक्लिस्ट रेस्ट पर आ जाएगा. साइक्लिस्ट आ गया रेस्ट पर. एज cyclist is the observer. ठीक, ये हम सबको पता है कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर आ जाता है. नाउ साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में बस की स्पीड कितनी हो जाएगी?
तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बस पता नहीं है तो वीबी रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट इज 20। तो ये जितनी भी स्पीड्स है यहाँ पर, ये जितनी भी स्पीड्स हैं, अब ये वीबी नहीं रह गई, ये स्पीड्स हो गई वीबी माइनस 20, वीबी माइनस 20, वीबी माइनस 20। ठीक, अब इस बात को समझते हैं कि मान लो अभी अभी ये बस इस साइक्लिस्ट को क्रॉस करी है, अभी अभी बस इस साइक्लिस्ट को क्रॉस करी और साइक्लिस्ट रेस्ट पर है। रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि साइक्लिस्ट ही ऑब्जर्वर है। तो अगली बस को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी साइक्लिस्ट पे पहुंचने के लिए? तो अगली बस को वही दूरी तय करनी पड़ेगी विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द बसेस। यस और नो? द नेक्स्ट बस विल कवर द सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस बिटवीन द बसेस टू क्रॉस द साइक्लिस्ट। हाँ, या वो उतनी दूरी तय करेगी और उसकी स्पीड है वीबी माइनस 20। तो टाइम हम वहां से निकाल सकते हैं, टाइम टू क्रॉस द साइक्लिस्ट, क्रॉस द साइक्लिस्ट t इक्वल्स टू और t1 इक्वल्स टू डिस्टेंस vb इंटू t डिवाइडेड बाई vb माइनस 20। और ये टाइम आपको दिया गया 18 मिनट। ओके, अब हम ऑपोजिट डायरेक्शन वाली बात करते हैं। तो ये हमारा साइक्लिस्ट है, बहुत ही गंदा साइक्लिस्ट है बट चलो काम करेगा। चलिए ठीक, तो ये हमारा साइक्लिस्ट है, ये साइक्लिस्ट जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। और अब कुछ बसेस वापस लौट रही हैं। जो वापस लौटने वाली बसेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जो वापस लौटने वाली बसेस हैं भाई, उनके बीच में भी डिस्टेंस तो वही होगी ना जो जाने वाली बसेस हैं, क्योंकि उनके बीच में भी टाइम इंटरवल सेम है, उनकी भी स्पीड सेम है, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिस्टेंस बिटवीन द बसेस इज स्टिल गोइंग टू बी वीबी इंटू टी। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे शॉर्ट में, डिस्टेंस बिटवीन द बसेस इक्वल्स टू वीबी इंटू टी। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द बसेस। अब हमें क्या करना है? हमें मोशन देखना है विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। क्यों देखना है विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट? अक्सर बच्चे पूछते हैं क्यों देखना है विद रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये साइक्लिस्ट देखता है कि हर एक बस उसे 6-6 मिनट पे क्रॉस कर रही है। ये वाली 18-18 मिनट पे, ये वाली 6-6 मिनट पे क्रॉस कर रही है। तो हम साइक्लिस्ट के रेस्पेक्ट में जब मोशन देखेंगे तो अगेन विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट बना देता हूं, विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की स्पीड हो गई 0, बसेस की स्पीड क्या हो गई? बसेस की स्पीड हो गई vb माइनस 20, ऐसा करके। अब आप सोचोगे ये कैसे हो गया? तो बेटा भाई सीधी सी बात है कि जब आप दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और उसमें एक की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस ऑफ माइनस ही होगा। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ बस आपका बैकवर्ड्स को पॉजिटिव मान लेते हैं, इस यहाँ पे इस जगह पे इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं। वैसे उल्टा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बट ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बस हो गई vb और वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट हो गई -20। तो ये आपका आ गया बेटा vb प्लस 20। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे साइक्लिस्ट रेस्ट पर हो गया, अब बसेस उसे क्रॉस कर रही हैं। अब जब बसेस उसे क्रॉस कर रही हैं तो अभी ये वाली बस क्रॉस कर रही है, इनके नाम रख देता हूं, चलिए जो नाम थे वही ले लेता हूं, MNO। अभी इसे N वाली बस इसे क्रॉस कर रही है। तो जब इसे N वाली बस अभी क्रॉस कर रही है तो अगली बस को क्रॉस करने के लिए इसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? अगली बस को क्रॉस करने के लिए, साइक्लिस्ट को क्रॉस करने के लिए उस बस को कितनी दूरी, कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी? दैट डिस्टेंस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू vb इंटू टी। ये वाली डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ द बस दिया हुआ है vb प्लस 20, तो टाइम यहां पर आ जाएगा t2 इज इक्वल्स टू हाउ मच? vb इंटू टी डिवाइडेड बाई vb प्लस 20 और इसकी वैल्यू है 6 मिनट, जैसा कि क्वेश्चन देख कह रहा है। दिस वैल्यू इज एक्चुअली इक्वल्स टू 6 मिनट्स। सो दिस इज हियर, यहाँ पे मुझे लिख लेने दो, दिस हियर
is your equation number 1 and this here is your equation number 2. और हमें कुछ नहीं करना है, आप देख लो, हमें इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से या इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. क्या आंसर आ जाएगा वो नेक्स्ट पेज में देखें. तो VB, I'm sorry, I'll write this using white pen. Alright, VB into T divided by VB plus 20 is equals to 18, not plus 20, VB minus 20 equals to 18. पहला वाला केस, VB into T divided by VB plus 20 equals to 6, right? Then we will have VB plus 20 divided by VB minus 20 equals to 3, right? And from here you are going to solve for the value of VB. So VB plus 20, 3 VB minus 60. So 80 equals to 2 VB and VB का वैल्यू आ जाएगा 40 kmph. The value of VB is going to be 40 kmph, right? और फिर आप इक्वेशन नंबर 2 में VB सब्स्टिट्यूट कर दो. 40 into T divided by 40 plus 2, that is equals to 60 equals to 6. So 6 T equals to 36 divided by 4 and that is equals to 9 minutes. So you see आपका T का वैल्यू भी आ गया और VB का वैल्यू भी आ गया. बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को. तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे और अच्छे क्वेश्चंस थे. मैं नहीं कहूँगा कि ये आसान क्वेश्चंस थे. इस लेवल के क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस में भी आते हैं और बहुत ही इजीली आते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं. इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू सम मोर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स. ओके, चलिए. सो नेक्स्ट स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज अ line of joggers. They are jogging in a straight line, maintaining a constant distance between them. So, you know, these are all your joggers. And what I see is their heads. I'm looking at it from the top view. So, all I see is their heads. I cannot see the rest of the body and how they are jogging and all. All I can see is their heads because I'm looking from the top. And these joggers are moving at a constant speed of 10 meter per second and have a constant distance of 8 meters between any two consecutive joggers. Any two consecutive means any two consecutive. If you take any two consecutive joggers, you take this one or you take this one. Any two consecutive joggers you take, the distance between them is going to be 8 meters. Now, we take another line. This is a line of cyclists. This is a line of cyclists. This is a line of cyclists. And this line is moving with 15 meter per second. This line is moving with 15 meter per second, as you can see. And the distance between any two cyclists, any two consecutive cyclists, not any two cyclists, any two consecutive cyclists is 12 meters. So you take these two cyclists or you take these two cyclists, you take any two consecutive cyclists, you will find that the distance between them is 2 meters. Now the question is, with what speed should I move in between the lines so that whenever I meet the jogger,
I meet a jogger on one side, I also meet a cyclist on the other side. So with what speed should I move in between the lines so that whenever I meet a jogger on one side, I also meet a cyclist on the other side. So this question is being asked by a person. This question is being asked to you by a person, and let us represent the person with P. This is the person P, and this person says that with what speed should I move, let's say Vp, so that whenever I have a jogger on one side, I also have a cyclist on the other side. As in, ये कभी नहीं होना चाहिए कि I could have a jogger on one side और इधर खाली हो, मतलब यहाँ पे सामने कोई जॉगर नहीं. जैसे यहाँ पर देख लो, ये इस तरह से यहाँ पे अगर वो होता इस वक्त, तो एक साइड में उसके जॉगर होता बट एक साइड में कुछ नहीं होता, या यहाँ होता मान लो, तो एक साइड में साइक्लिस्ट होता लेकिन इस साइड कुछ नहीं होता, ये खाली होता. तो इस सिनेरियो से वो बचना चाह रहा है. वो ये कह रहा है कि मैं कितनी स्पीड से भागूं कि जब मुझे एक साइड एक जॉगर दिखाई दे तो दूसरे साइड एक साइक्लिस्ट दिखाई दे, और ऐसा हमेशा होना चाहिए. दैट दिस शुड हैपन ऑल द टाइम. तो how do you observe this motion? Not you, the person who is observing this motion. The person who is observing this motion is this person, this P here. और जब ये मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो जॉगर की स्पीड और साइक्लिस्ट की स्पीड तो सेम होगी नहीं. जॉगर की स्पीड डिफरेंट होगी, साइक्लिस्ट की स्पीड डिफरेंट होगी. जो कि अभी डायग्राम में दिखाया जा रहा है वो सारी स्पीड्स ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है. तो हम इस क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए, देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्यों है, जॉगर भी मूव कर रहा है, पर्सन भी मूव कर रहा है, साइक्लिस्ट भी मूव कर रहा है. अब तीनों का मोशन अगर देखना हो तो हालत खराब हो जाएगी. तो कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें किसी एक को अपना रेफरेंस फ्रेम मान लेना चाहिए. जैसे हम उसको अपना रेफरेंस फ्रेम मानते हैं वैसे ही वो रेस्ट पर आ जाता है. ठीक. तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हम अपने पर्सन को रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से वही ऑब्जर्वर है. तो हमारा जो पर्सन है वो रेफरेंस फ्रेम है. अब रेफरेंस फ्रेम हमेशा रेस्ट पर होता है. तो जॉगर की स्पीड कितनी हो गई? जॉगर की स्पीड हो गई 10 माइनस वीपी. और साइक्लिस्ट की स्पीड कितनी हो गई? साइक्लिस्ट की स्पीड हो गई 15 माइनस वीपी हो गई. अब इसके पिछले जॉगर की भी वही होगी 10 माइनस वीपी, और इसके पिछले साइक्लिस्ट की भी वही होगी 15 माइनस वीपी. इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेक्स्ट टाइम, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइम मैं मान लेता हूं दिस इज जॉगर 1 J1, this is J2, this is C1 and this is C2, cyclist 1 and cyclist 2. So the next time when jogger 2 comes and comes by the side of the person, the cyclist 2 must also come by the side of the person. ठीक, अभी तो एक जॉगर और एक साइक्लिस्ट है अभी for now at t equals to 0. Next time when J2 comes and stands beside this person, the cyclist should also be standing beside the person, because this should happen each time, every time. That whenever a jogger is on one side, there is a cyclist on the other side. So, what is the relative distance traveled by the jogger? Obviously, 8 meters. Relative distance traveled by J2 is 8 meters and the relative distance traveled by C2 is 12 meters. And their speeds are, the speed of J2 is same as J1, that is 10 minus Vp. And the speed of C2 is same as that of C1, that is 15 minus Vp. So all we have to do is consider the fact that since the two events are happening at the same point of time, that means T2 is equals to T1, that is the time taken for J2 to reach J1's point will be same as the time taken by C2 to reach C1's point. The time, I am speaking it again, the time taken by J2 to reach J1's point will be same as the time taken by C2 to reach C1's time.
एंड दैट इज हाउ इट विल हैपन कि हमारा जो बंदा है, ऑब्जर्वर है, बीच में बंदा, उसको जब भी एक साइड में जॉगर दिखेगा, दूसरे साइड साइकिलिस्ट दिखेगा. सो T2 का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? T2 का वैल्यू आप लिख सकते हो डिस्टेंस 8 मीटर्स डिवाइडेड बाय स्पीड 10 माइनस वीपी. T1 को क्या लिख सकते हो? T1 को क्या लिख सकते हो? और लेट मी नॉट रिप्रेजेंट इट एज T2 एंड T1. Let me represent it as TJ and TC. J means jogger and C means cyclist. Now TC को क्या लिख सकते हैं? TC को I can write it as 12 divided by 15 minus VP. Now if you are going to solve this equation, it's actually a simple equation to solve. So when you will solve this, you will get VP equals to 0. Let me check it. 8 by 10 equals to 12 by 15. That should happen. So 8 by 10 is 4 by 5 and 4 by 5. Right. So VP equals to 0. Correct. Now, what does this say? It says कि ये जो बीच वाला बंदा है, ये अगर मूव ही ना करे, ये रेस्ट पे रहे, तो जितनी देर में एक जॉगर यहां से यहां दौड़ते हुए आ रहा है, उतनी देर में एक साइकिलिस्ट यहां से यहां चलाते हुए साइकिल चलाएगा, और उस वक्त उसके बगल में फिर से एक जॉगर और एक साइकिलिस्ट होगा. So this solution states that this person should not move at all. This person here should not move at all. He should remain at rest. The VP equals to 0. And that gives you a solution to an interesting problem. Right? So this is one-dimensional relative motion. और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान है. और अगर आप चाहते हो कि आपको किसी वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि किसी रिलेटिव मोशन के टॉपिक में तकलीफ है, एंड इफ यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो आउट ऑफ इट, जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड हम उस पर काम करेंगे. ऑलराइट, ओके.